ओके, कितने लोग थे ऑनलाइन? नहीं आइडिया, चलो। ओके, सो मैं आपका ट्रेनर रहूंगा कुछ वक्त के लिए। स्टार्टिंग में कोई और होगा, फिर मैं आऊंगा। सो ऐसा क्यों? हाँ देखो, हर बंदा किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो सकता है, राइट? क्योंकि आपको नहीं पता आप किस चीज में लैंड करोगे, है ना? आपको पाइथन स्पेसिफिक जॉब मिलेगी, आपको आर स्पेसिफिक जॉब मिलेगी, आपको सीक्वल स्पेसिफिक मिलेगी, आपको बिग डेटा मिलेगी, डीप लर्निंग मिलेगी, एनएलपी मिलेगी, मशीन लर्निंग मिलेगी। आपको पता है? नहीं ना? हम सब पढ़ेंगे, राइट? और स्कूल से आप मान लो बीटेक या बीकॉम या बीएससी जो भी किया होगा, बचपन में अंग्रेजी भी सिखाई जाती है, हिंदी भी सिखाई जाती है, संस्कृत भी सिखाई गई होगी, है ना? क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि तुम्हें मान लो आईएएस बनना था, और या तुम्हें बीटेक कंप्यूटर साइंस में करना था, राइट? तुम्हें सब क्यों रायते पढ़ना है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और इतिहास क्यों पढ़ना है? गलत है। तो आप एक एक ना रिक्शा पुलर वाली जिंदगी हो जाएगी, राइट? रिक्शा पुलर समझते हो? जैसे उसको, अगर वो यहाँ रहता है रिक्शा पुलर, तो उसे इस मोहल्ले के सब गली, सब रास्ते, सब घर पता होंगे। उसे नोएडा में भेज दो, खो जाएगा। यस, इसीलिए सब चीजें पढ़ाई जाती। आप किस जगह इंटरेस्ट पैदा होगा आपको नहीं पता। अंडरस्टैंड? अभी आपको पढ़ाया जाएगा, हो सकता है आपका इंटरेस्ट एनएलपी में बढ़ जाए, एनएलपी का आप जॉब करोगे। हो सकता है आपका इंटरेस्ट डीप लर्निंग पढ़ जाए, डीप लर्निंग। और आपको सिर्फ अभी से इंटरेस्ट पता है अपना खुद का, तो बाकी सब साइड मारो, उसी फोकस करो, राइट? ओके, एनीवे, सो गाइस, माय नेम इज पुरुषोत्तम शर्मा, ओके, एंड आई एम वर्किंग प्रोफेशनल। I work for MNC, and it's been close to 6 years as a data scientist, and I have worked upon multiple projects. We'll discuss this later part. First of all, I want to everybody, right? Just give me a basic introduction, right, so that I can understand what type of batch it is, right? If it is prone to mathematics, technology, or something, so I'll discuss in that way. If it is from some non-technical background, so I'll discuss in that. Understanding? The simple way to get into job, there are multi-fold. Okay. First one, if you are from technical background and if you are from mathematical or like quantitative background, so I'll discuss and talk in different perspective, right? And if you are from non-technical background, so I'll discuss this, different perspective. Simple thing, right? So I want to know, online guys, I'll take you a name after 5 minutes. So we have few people in the classrooms. So I need only names, right? Your education background, and if you are working, right? So what? Don't mention company, that doesn't matter. And what you do, that would be great. Only 3, 4 things. Understand? Please. Shabi. Okay. Delhi University. Okay. Okay. Which college? Okay. I've been Delhi University for 3 years, 3 months actually, as a guest lecturer for data science in Sri Venkateswara College. And this was in 2019. After that, this COVID spread. वहाँ का साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा है ना? Yes, I was there for close to 3 months on the days, and it was good experience. उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों, आपको एडमिशन नहीं देंगे पहले, बहुत पहले।
मुझे ना प्रोफेसर की तरह बुलाना पड़ा. Okay, next point. Above. Okay, so you are working as a backend operation guy, and you build the data and things. Name is Babu, and you're a mathematician. Not mathematician, just bachelor. Mathematician are called after masters. Anyway, next. Yogesh. Okay, Sandhu. Okay. Yeah, software developer. So what type of application you develop? Okay. Great, great. So why data science? Software is booming industry. Python is a different. Okay, Python is totally different from data science. That's okay, but why data science? Why you want to pursue data science? Software, good perk and good salary. I know one of my friend, he just passed on 2019 and he got placed of 20 lakh rupees. अच्छा, okay, no problem. मैं ऐसे खींच रहा था. Okay, so online class, Gurvit. Good morning, sir. So, actually, I have completed my Hello, BTech. you're not Hello. audible, Peter. Am I audible now, sir? Hello. Gurvit, your voice is not. Hello. Okay, Mani, please. Hello, am I audible? Hello, sir. Hello. 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 Gurvit, can you hear me? Yes, Yamani, please go ahead. Oh, hi. Myself Himani, and I've completed my BCA from IP University, and I'm currently pursuing with MCA from Rajasthan University. All right. So it's my final year. So as I'm working in Delhi itself, and I'm working for an organization for a networking job and technical support. So, and it's a Canadian-based company. All right. And if I'll talk about where did I get my interest in data science? So while I was in college and while pursuing the BCA, so there I had a like a certification, like I would say a short certification for almost 3 months. So where we were using Panda as ID, and where what I used to do, I had the data with me, like we were doing research on some I don't remember exactly Uber data, and we were asked to like make some graphs through them. So from there I got interest in it. So like I had in mind that I should do some research work.
So this is how it began. Okay. Mhm. Great. And Gurbit? Gurbit? I think he has some, no problem. Okay, so let me introduce myself. As I told you guys, my name is Purushottam Sharma, and it's been close to 6+ years into data science. Before joining as a data scientist, I was a salesman in banking sector. Please allow me to join. Please, Gurbit, take your time. So then I used to work for HDFC Bank a long time back. सेल्स की जॉब जानते हैं आप लोग क्या होती है? सुना है कभी सेल्स की जॉब? सड़क पे जो चम्मच बेच रहे होते हैं, बुक बेच रहे होते हैं, अरे ले लो सर। रिटेल जितने भी आपके रियल एस्टेट्स होती है ना, जो मकान बेचते हैं, घर बेचते हैं, सब MBA वाले होते हैं, ये छोटे-छोटे कॉलेज से पढ़े हुए। आई वाज सेल्समैन और मैं इंश्योरेंस, FD, RD, अकाउंट्स, लोन सब बेचा करता था। दैट वाज पैथेटिक। फिर it took some time to motivate myself to join data science as a community. But more or less, I joined this and now I'm working good. I have 2-3 companies. Because I'm mathematician. Master in mathematics. I did many research in data. Yeah. Because I did MBA. I'm double masters. I'm masters in business administration and MSc in mathematics. Okay. So, basically सेल्स इसलिए कर लिया था यार, उसमें MBA में जो मिल गई थी ले ली। एक्चुअली आपको ये मोस्टली लोगों के साथ होता है जो छोटे कॉलेज से पढ़ते हैं। ये नहीं कह रहा जो IIT IIMs पढ़ के उनका फोकस होता है। Yes, Gurbit. Give me 2 minutes. No, sir. I was just checking if I were audible. Yeah, you are audible. Yeah. So, छोटे कॉलेज, छोटे का मतलब not that IIT IIMs, right? जो B+ ग्रेड के A+ ग्रेड के, उनको छोड़ दो। बाकी जो कॉलेज में पढ़ते हैं लोग, उनका पता है, पहली बार में पता ही नहीं होता करना क्या। That's true. Okay. तो जो मिल जाती है उसमें ब्लेंड हो जाते हैं। फिर जब करते ना 1-1.5 साल 2 साल तक होश आता है, वो हम तो गलत रास्ते पे आ गए। Then they realize and change their project. तो यही मेरे साथ हुआ, राइट। उससे पहले I used to be teacher, ठीक है। अगर मेरी ट्रैजेक्टरी सुनोगे तो बहुत खतरनाक है। जब मैं BSc किया था, BSc मैथमेटिक्स था, MSc किया था, then I was become a teacher. तो मैं CBSE स्कूल में पढ़ाया था, फिर मैं BTech कॉलेज में पढ़ाया था करीब 6 महीने के आसपास। Then I changed, मेरा मन भर गया था वहां से। I changed to MBA किया, then I landed in bank as a salesman. उसके बाद एहसास हुआ भाई दुनिया सब बर्बाद है, इससे कुछ नहीं होने वाला। Let's change my future. Then I moved into data science और अब मेरी लाइफ बहुत रॉक है, कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय करता हूँ लाइफ को। 8 घंटे काम करता हूँ या मुश्किल से 6 घंटे काम करता हूँ पूरे दिन का, और बाकी सब कुछ ठीक है, राइट। अंग्रेजों से बात करता हूँ, उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे क्लाइंट जो है अंग्रेज, इंग्लिश वैसे ही क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो उनसे डिस्कस होता है, सब कुछ फाइन है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आई ट्रांजिट फ्रॉम सेल्स पर्सन टू डेटा साइंस। बट हाँ, एजुकेशन के मामले में ठीक रहा, तो मैंने MSc मैथमेटिक्स कर रखा था, MBA कर रखा था, that give me a benefit of this. Anyway, so as of now I work for some MNC company. ये दूसरी कंपनी में ज्वाइन करूंगा, जब ज्वाइन कर लूंगा तो बता दूंगा। But as of now I'm holding 3 offers. Yeah, fourth is coming. तो डिसाइड करना होगा ना कहाँ जाना है, जो पैसा ज्यादा दे रहा होगा और जो अच्छा काम दे रहा होगा। 2 मैटर है ना, पैसा पहले देखा जाता है स्टार्टिंग के 3-4 साल, फिर देखा जाता है काम कौन अच्छा दे रहा है, राइट। तो
जो काम अच्छा और पैसा दोनों अच्छा दे रहा होगा, आई विल गो। एज ऑफ नाउ 3 ऑफर्स हैं मेरे पास और चौथा ऑफर आई थिंक इस हफ्ते आ जाएगा, तो आई डिसाइड। तो इसीलिए कोई कंपनी बताने का फायदा नहीं मैं कहाँ काम करता था, अभी तो कर रहा हूँ, पर 15 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कहाँ मैं ज्वाइन किया। सो मैंने अभी तक क्या कर रखा है, देखो मैंने अपने ऑफिस पास में चैटबॉट्स बनाए हैं, यूएसए क्लाइंट के लिए रोबोट की पीछे की प्रोग्रामिंग की है कि मैं इंश्योरेंस फ्रॉड में डिस्कस काम किया है, मैंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है, मैंने आपके रिटेल में काम किया, रिटेल ई कॉमर्स में काम किया हुआ, ठीक है। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस इन मल्टीपल डोमेन्स एंड आई वर्कड अपॉन, जो आप पाइथन की बात कर रहे हैं, तो पाइथन एक लैंग्वेज है, ओके। कोई भी, मतलब यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन बच्चे हैं, माई पॉइंट इज डोंट डाइव कि सब मुझे पाइथन अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट। इन डेटा साइंस व्हाट द मैटर मोस्ट इज अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग आप सीख लोगे, ठीक है। 80% जो डेटा साइंटिस्ट हैं, जो प्रोग्रामर हैं, दे सर्च फॉर गूगल, दे सर्च फॉर गिटहब, यस और नो, राइट। कोई कहे कि बहुत अच्छा प्रोग्रामर, उससे कहना भाई चैट चैट गूगल जिस दिन हटा दिया जाए वो जाएगा, इट्स ट्रू, ओके। मोस्ट ऑफ डेटा साइंटिस्ट, मोस्ट ऑफ प्रोग्रामर, मोस्ट ऑफ डेवलपर सर्च फॉर गूगल, ठीक है ना। तो लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत बड़ी बात नहीं, यू विल लर्न दिस, बट द important thing is to business problem solution. If you are given a problem and you can solve it, that means you can be data scientist. प्रोग्रामिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको कुछ यूट्यूब पे वीडियो दे दूंगा, कुछ मेरे पुराने वीडियो पढ़े, आप पढ़ के सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू डील विद द बिजनेस प्रॉब्लम। डेटा साइंटिस्ट का डे टू डे काम ऐसे होता है कि आपको प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू योर वर्क, और आपको उसमें से सोल्यूशन निकालना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल होता था, मुझे अभी मैं रिसेंट का काम बताता हूँ। रिसेंट क्या हुआ कि मुझे एक कंपनी ने मुझे ऑफर लेटर भेजा था। एक प्रॉब्लम है छोटी सी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट में बताऊँ कैसे काम हुआ। क्या कि रात को उन्होंने फ्राइडे को मुझे भेजा ऑफर लेटर, और मैं किसी समय बिजी था, मैंने अपना ईमेल चेक नहीं कर पाया। मैं सैटरडे को रात को 10 बजे के आसपास ईमेल चेक कर रहा था, मुझे ऑफर लेटर आया था कि भाई सैटरडे की शाम तक आपको भेजना है। अब रात के 10 बजे, और उन्होंने कहा कि जो करीब 30-35 पेज का उनका वो होता है ऑफर लेटर, अब उसको पढ़ो और उसको साइन करो पेपर को, है ना, पेपर को साइन करके फिर अपलोड करो, फिर उनको सेंड करो। और वो सैटरडे से पहले पहले करना था शाम को। मेरे पास बचे 2 घंटे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, अगर आप नहीं करोगे तो रिजेक्ट होगा, मतलब ऑफर खत्म। तो मैं क्या करूँ, 2 घंटे में क्या कर सकता हूँ, 10 बजे के बाद दुकान भी बंद हो जाती है। अब मेरे पास प्रिंटर भी नहीं था, तो मैं पड़ोस वाले अंकल के पास गया, हमने अंकल प्रिंट करना है, बोले प्रिंटर है बट बेटा इसमें स्कैनर नहीं है, आप प्रिंट कर सकते हो। मैंने ठीक है प्रिंट कर लो। तो हमने प्रिंट निकाले, मैं घर आया, मैं फोटो उस पर साइन ऑन किए। अब क्या करूँ, फोटो खींचो, ये ऑप्शन है ना, फोटो खींचो और उसको अपलोड करो। अब फोटो हो जाएंगे आपके करीब 30 पेज के आसपास थे, प्लस 30 फोटो। और कितना भी छोटा, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं करो तो उसमें पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, गंदा भद्दा हो जाएगा। और फोटो भेजोगे तो इतने सारे फोटो अपलोड नहीं कर सकते उसको, क्योंकि एक ही पेज अपलोड करना है, और फोटो को मर्ज भी नहीं कर सकते आप, राइट। अभी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा क्या करूं, मैंने चलो कुछ पाइथन में कर लेते हैं। तो मैंने फिर प्रोग्राम लिखा। मैंने क्या किया, जो फोटोज हैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट किया, सारे फोटोज को एक प्रोग्राम लिखा, जो सारे फोटोज पढ़ेगा, उन सारे फोटोज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेगा, और उन फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबको मर्ज करेगा, एक प्रॉपर अच्छी सी पीडीएफ बनाएगा, ठीक है। मैंने बनाया और उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। और मैंने लिख भी दिया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट बाय पाइथन। वो वहां से संडे को कॉल आया एचआर का कि क्या क्या किया सर आपने, क्यों सर ये क्यों लिख दिया पाइथन प्रोजेक्ट, हमने क्या, मैं दुखी था, आपने ऐसे कांड दे दिया, फोन तो कर देते कि आपने ऑफर लेटर भेज दिया है तो मैं देख लेता। अरे बोले वो सर जल्दी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं था और आप कोई दूसरा ऑफर पकड़ लेते इसलिए हमने भेज दिया था। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपने सॉल्व कर दिया। इसी तरह से रियल वर्ल्ड में आपको प्रॉब्लम, राइट। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि भाई हमारे यहाँ का, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ डेटा साइंस में क्या होती है कि
आपने देखा हो आप कहाँ के रहने वाले हो बेटा? नोएडा से रहते हैं? नोएडा में कहाँ से आते हैं? 62 पे। दिल्ली से आप हो? कोई है दिल्ली से? कहाँ से रहते हो? निर्माण बिहार। हाँ, निर्माण बिहार देखा है मैंने। तो जब मैं एमबीए के बाद बैंक में जो नौकरी करता था, तो मैं रहता था रंजीत नगर में, पटेल नगर के पास में। तो रंजीत नगर के पीछे मतलब मुझे भी मोहल्ला भी याद नहीं, वहां पे वो दोनों मिक्स होते थे, मतलब बाउंड्री थी। मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, राइट, नया नया गया, लिया था वहीं पे पिज्जा ऑर्डर किया। पिज्जा वाले मना कर दिया, भाई हम वहां डिलीवरी नहीं देते, आज से 8-7 साल पहले। मैंने कहा यार, उसमें एमबीए कर रहा था, बैंक में कर रहा था, मुझे डेटा साइंस के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो बोले ये, तो मैंने कहा क्यों नहीं करते? बोले नहीं करते, बस वहां पे नहीं करते, बात खत्म हो गई। बहुत बुरा लगा यार, पिज्जा खाने का मन कर रहा था, नहीं भेजा उसने। तो फिर मैंने कहा, बोले सड़क पे आ जाओ दे देंगे, अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ये सड़क मंगाया, लेके आया पिज्जा, तब तक ठंडा हो गया। एनीवे, तो खत्म हो गया। जब मैं डेटा साइंटिस्ट बना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों नहीं भेजते। कुछ जगह है दिल्ली में, वहां पे, दिल्ली देखो बहुत एनसीआर है, राइट, नेशनल कैपिटल है। यहाँ पर कुछ जगह बैंक लोन नहीं देता। आप कुछ पर्टिकुलर एरिया से आते हैं तो बैंक आपको लोन नहीं देता। हाँ, कुछ जगह आपका कैश ऑन डिलीवरी अमेजोन प्रोडक्ट नहीं देती दिल्ली में। गांव तो चलो ठीक है, बहुत दूर है, राइट, मान लो किसी छीन लिया, दिल्ली में डिलीवर नहीं करता। इन सब चीजों के पीछे एक मैकेनिज्म, इन सब चीजों के छिपी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग डिसाइड कर लेती है, मशीन लर्निंग सीख लेती है कि ऐसे लोगों को लोन देना, या ऐसे लोगों को पिज्जा डिलीवरी करना, ऐसे लोगों को अमेजोन देना, ऑर्डर देना कैश ऑन डिलीवरी खतरनाक हो सकता है। ओके, खतरनाक कैसे हो सकता है कि वहां पे आप पिज्जा लेके गए, पिज्जा छीन लिया जाओ, क्या करोगे? वो बेचारा, उसकी 8,000 रुपए की नौकरी है और आप 900 रुपए का पिज्जा छीन लिया आपने, पैसा किससे कटेगा? उसकी सैलरी से, राइट। इस तरह के सिस्टम बनाए, एल्गोरिथम ने डिजाइन किए कि भाई इस जगह पे नहीं जाना, यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं, अगर आप गए तो आपका लॉस नहीं। ऐसे ही बैंकिंग रहती है कि इस जगह पे लोग बहुत गंदे लोग रहते हैं। गंदे का मतलब मेरा वो नहीं है, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, राइट, नौकरी से कोई मतलब नहीं। गंदे का मतलब है जो लोगों को नुकसान हो, वहां पे लोग ईएमआई नहीं देंगे, अब ढूंढते रहो, घर ही ना मिलेगा। हाँ, तो बैंक उनको लोन देना मना कर। ऐसे अमेजोन का जब मैं ई कॉमर्स में काम कर रहा था, अब फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मुझे पता चला कि गुजरात में एक जिप कोड है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, उस जिप कोड पे क्या था कि वहां के जो लोकल दुकान वाले थे, उन्होंने सब लोगों को बोला था कि अमेजोन से ऑर्डर करो। सब लोग मतलब जो दुकान के दोस्त थे, जैसे मेरी दुकान है, मेरे रिश्तेदार होंगे दो एक, उनसे बोला कि अमेजोन से ऑर्डर करो, मंगाओ, 8 दिन यूज करो, वापस करो। तो वो मंगाते थे सीओडी पे, राइट, मंगाते थे और जूते पहनते थे, जो भी कपड़े मंगाए पहने और 8 दिन बाद वापस कर। और ये सब लोग करते थे, हर प्रोडक्ट के बारे में। तो बेटा नुकसान हो रहा है किसी का, राइट। अब मान लो एक बार मंगाया, चलो ठीक है, दूसरी बार मंगाया, तीसरी बार मंगाया, चौथी बार मंगाया, और पूरे जिप कोड में तो अच्छा खासा एरिया होता है, राइट, उसमें 200-300 लोग ऐसा ही कर रहे हैं। ट्रिगर हुआ, पता चला कि यार कांड क्या हो रहा है ऐसा। तो मशीन ने ट्रिगर किया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिसी हो रहा है। तो मशीन का इतना दिमाग नहीं है वो ये बताए कुछ क्या हो रहा है, वो ये बता देते कुछ गड़बड़ है, राइट। तो देखा, उसको रिसर्च किया, क्या कॉन्सेप्ट है, हमने उसके ऊपर एल्गोरिथम बना दिया। अब ऐसी कोई भी जिप कोड पे हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं, हम प्रोडक्ट ही नहीं बेचते, कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल नहीं बेचते। सिर्फ उसी जगह बेचते हैं जहां पर हमें लगता है कि पैसा मिलता है, ऐसे कहीं नहीं करते, समझे? तो ये सब चीजें डेटा साइंस करता है। मस्त देखो, ये दिक्कतें थी हमारे पास, हमने इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया थ्रू मशीन, थ्रू डेटा साइंस, थ्रू डीप लर्निंग, व्हाट्सएप। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद एनी एल्गोरिथम, एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, बट वही है कि जो जैसी जरूरत होती है उस तरह से सॉल्व। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो डेटा साइंस ये करता है।
जैसे कि मेरा आई वॉच, राइट, ये तो स्मार्ट वॉच क्या करता है, आजकल ज्यादातर स्मार्ट वॉच पे लोग फोकस कर रहे हैं। पहले के एक वक्त था, डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते थे, तो वो क्या करते थे कि आप गए डॉक्टर के पास, आपसे पूछा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उस पर लिख के दवाई लिख देते थे, और कहते 3 दिन बाद वापस आके देखना, और नहीं ठीक हुआ तो वो दवाई फिर चेंज करते थे। यही करते थे और अभी भी करते हैं, राइट। तो कहते थे कम से कम 5-7 दिन 10 दिन तो आपको बार बार यहाँ आना ही पड़ेगा। तो ऐसे बातें होती रहती थी, बट धीरे धीरे एआई इवॉल्व हो गई, राइट, जो हम लोग आज करते हैं, और एआई डिसाइड कर लेती है, राइट। अभी इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। अभी इंडिया में नहीं आई है, यूएसए में इसका टेस्टिंग चल रही है। वो करते क्या है कि आप मेडिकल शॉप या आप कोई भी आप हेल्थ केयर ले लो, एक आई वॉच की वॉच खरीदो, राइट, स्मार्ट वॉच कोई भी खरीदो जिसमें ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, वो आपकी सारी एक्टिविटी ट्रैक करता है, राइट। आप कितना घूमे, कितना सोए, कितना जागे, राइट, कितना दौड़े, क्या किया, आपका हार्ट बीट में कितना रहा, वो सब रिकॉर्ड करके रखता है सिस्टम क्लाउड में, राइट। और आपकी एक्टिविटी कहाँ से, आप पिछले 10 साल से कौन कौन सी दवाइयां, कौन कौन सी बीमारियां हुई हैं आपको, क्या क्या आपने ट्रीटमेंट लिए, आपने ऑपरेशन हुए नहीं हुए, सब रखा हुआ है उनके पास। इसके लिए सेंट्रल रिपोजिटरी बनेगी थोड़े दिनों में, यूएसए में है, इंडिया में बनने वाली है। सारे हॉस्पिटल का डेटा एक जगह, आप किसी भी हॉस्पिटल एडमिट हो गए, किसी भी हॉस्पिटल कुछ भी दवाई लोगे, वहां पे स्टोर होगा, राइट। और वहां से कोई भी जो भी मेडिकल पर्सन होगा वो निकाल सकता है, ताकि आपकी पुरानी हिस्ट्री देख सके। ऐसे आज आप गए, उनके बाद यहाँ पे क्या होता है, आप एचडीएफसी बैंक से अपना ऑपरेशन करा, इंश्योरेंस करा रखा है, आप ऑपरेशन करो, आईसीसी वाले को पता ही नहीं है आपके पास ऑपरेशन हो चुका है ना। मालूम मैंने बीएलके में ऑपरेशन करा या मैक्स में ऑपरेशन करा, मैक्स वाले को पता है ना ऑपरेशन हुआ है, किसी और को तो पता नहीं चलेगा। हमें उनसे बोलूँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जब आपकी छोटी एज होती है 30-35-40 साल, तो वो लोग टेस्ट भी नहीं कराते और पैसा बचा लेते थे। यू विल अंडरस्टैंड जब लोग बिजनेस पे बात करेंगे आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे करते हैं। तो वो सब डेटा उनके पास है, इवन आपका सोशल मीडिया का डेटा उनके पास है, राइट। और उन सबको कंबाइन करके वो क्या बताएंगे, मशीन बताएगी इस बंदे को ये प्रॉब्लम हो सकती है अगले कुछ वक्त में, इस बंदे को हार्ट अटैक आ सकता है, ये बंदे को बुखार आ सकता है, इस बंदे को ये हो सकता है, इस बंदे को वो हो सकता है, आपको पहले से एडवांस में मिल सकता है, राइट। तो आपने फिल्मों में देखा ना, डॉक्टर पहले बता दे दवाई क्या, आपको खतरा है, आपका ये होने वाला, तो एक्चुअल में हो चुका है, ये टेस्ट हो चुका है, और उस पर कहते हैं ना उसको प्रोडक्शन लेवल पे तैयार किया जा रहा है। जब वो तैयार हो जाएगा, आपको थोड़े बहुत वक्त, मुश्किल से 3-4 साल में आपको देखने को, फिर वो रेडी करते हैं और बता रहे हैं। और अगर आपको बीमारी हो गई तो एकदम स्पेसिफाई चीज बताएगी, इस बंदे को ये ड्रग इतनी क्वांटिटी बस आपकी। अभी ना 10 दवाइयां लिखते हैं डॉक्टर, वो खत्म, डॉक्टर सिर्फ बैठे होंगे वहां पर एनालाइज करने के लिए कि भाई गड़बड़ क्या हो रहा है, मशीन पूरा देखेगी, टेस्ट करेगी, सब कुछ पहले बता देगी, उतनी मेडिसिन उतनी क्वांटिटी उतनी टाइम के लिए दी जाएगी, और आपकी यहां तक डेवलप हो चुका। इवन आपने न्यूरोलिंक के बारे में सुना, एलन मस्क, सुना है किसी ने, नहीं। वो कहता है कि आप कभी मरोगे नहीं, आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, आपके मरने का मतलब क्या, आपका तो शरीर है, शरीर की याददाश्त नहीं होती, राइट, ब्रेन की होती है। वो आपके ब्रेन को एक मशीन के साथ अटैच कर, ब्रेन में एक चिप डाल, आपकी जितनी भी यादें हैं, जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी सोचने की कैपेसिटी, वो सब उसमें आ जाएगी आपकी मशीन। आप अपने घर पे ले, अपने दादा बाबा को बैठा लो, ये देखो दादा है, ये दादी है, ये आपकी जो भी मतलब है, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे समझ सकते हो। और उसका प्लान है 2023 तक वो चिप मशीन इंसानों में डाल के शुरू कर देगा। देखो यार, अभी 2-3 साल पहले जापान में हुआ था कि कुछ 5 सेकंड की 5 या 1 सेकंड की कैलकुलेशन करने के लिए जापान के बहुत बड़ा कंप्यूटर, वो भी सॉल्व नहीं कर पाया। जितना हम 1 सेकंड में सोच सकते हैं, हम 1 सेकंड में कर सकते हैं, वो नहीं कर पाया। बट लोग बना रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। अब क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया,
क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं, पहले था एल्जेब्रिक कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशन होता था, जो मैट्रिक्स वगैरह बनती है, इनकी कंप्यूटेशन। धीरे धीरे फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, जो आप सुना होगा, गूगल क्लाउड, AWS क्लाउड, इस पे काम होने लगा। अब क्वांटम कंप्यूटिंग है। क्वांटम कंप्यूटर मतलब समझ लो एक टाइम में 32 कंप्यूटर काम, एक कंप्यूटर 32 कंप्यूटर के बराबर हो, ठीक है ना? तो हाँ, और ये इसने गूगल ने बना लिया है, उसने शायद न्यूज रिलीज नहीं करी, कर देगा आगे उसने बना लिया, और IBM वाले बना रहे हैं, ठीक है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग है। अभी तो आपका बहुत बेसिक चल रहा है, जब उसमें आ जाओ, क्वांटम में आ जाओ, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। कहते हैं कि 1 टेराबाइट और बीटा जेटाबाइट की कैलकुलेशन सेकंड्स में हो जाएगी। अभी आपकी कोई जीबी में कैलकुलेशन होती है 10 मिनट में होती है, राइट? और जो 6G पे टेस्टिंग हो रही है, वो कहते हैं कि 1 मिलियन के आसपास मूवीज 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएंगी। 1 मिलियन मूवीज 1 सेकंड में डाउनलोड। तो आप सोच लो कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, और हम भी क्या पढ़ने वाले, पाइथन, राइट? डेटा साइंस इस तरह से काम। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ने के चांसेस कम बढ़ सकते, राइट? मेरा भी एक मकसद है आगे कुछ करने का, राइट? मैं कुछ डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, तो उस पोजीशन पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, उस डायरेक्शन पहुंचने में, जो इतनी बड़ी बड़ी चीज होती है। या तो फिर आप एक बहुत बड़े बैकग्राउंड से आ रहे हो, IIT से आ रहे हो, MIT से आ रहे हो, स्टैनफोर्ड से आ रहे हो, तो आपको डायरेक्ट ऐसी चीजें मिल जाती है। बट अगर आप छोटे कॉलेज पढ़ के आते हो तो बहुत पहुंच सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग? वही है, यू विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ाने में। सो what is coming in your classes? So basic understanding ये है, यहाँ पे पहले आपको SQL वगैरह पढ़ाया जाएगा, तो बेसिक होगा, डेटाबेस होगा। और SQL के लिए there is a teacher, that is आलोक, okay? आलोक चौहान, या आलोक कोई और सर, मेरे नाम तो नहीं आता, बट आलोक सर पढ़ाएंगे। he is from Himaticus itself. पहले वो काम करते थे, Himaticus में proper। पहले SQL पढ़ाएंगे, फिर आपको विजुअलाइजेशन पढ़ाया जाएगा, पावर BI या फिर आपको पाइथन सिखाया जाएगा, राइट? और पाइथन अच्छा खासा चलेगा आपको 1 महीने के आसपास। स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, राइट? क्योंकि जो जरूरत है मशीन लर्निंग के लिए। देन स्टैटिकल लर्निंग, देन मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग, देन NLP। उसके बाद दे विल गो फॉर बिग आर, सॉरी आर, लैंग्वेज पाइथन हो गया, फिर आर एक और लैंग्वेज है, वो सीखोगे, वो भी करीब 1 महीने के आसपास। फिर आपका 1 महीने ज्यादा ही चलेगा, फिर आपका आर है, सॉरी लूप आएगा, इसमें स्पार्क, पाइस्पार्क, इस तरह की चीजें पढ़ाई जाएंगी। लाइनक्स पढ़ाया जाएगा आपके लिए, टैबलू वगैरह शायद लास्ट में पढ़ाया जाएगा, पहले पढ़ाया जाएगा। इस तरह से कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब का ऑफर, बट मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, पिछले मैं यहाँ पे करीब 1.5-2 साल हो चुके हैं वीकेंड से पढ़ाते हुए। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे ही आप मशीन लर्निंग कंप्लीट करते हैं, राइट, यू आर एलिजिबल फॉर जॉब। आप बाहर ट्राई कर सकते हो आराम से। मेरे बहुत सारे बच्चे, आप बाहर बोर्ड देखोगे, उसमें 40-45% बच्चे मैंने पढ़ाया हुए हैं। उनमें से कुछ बच्चों की तो नौकरी, हर बैच में 1-2 बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जो सुनते हैं या जो समझते हैं, राइट? दोनों चीजें, वो मशीन लर्निंग खत्म होने से पहले भी जॉब ले चुके हैं। और जॉब का पैकेज ऐसे नहीं छोटा मोटा, 8-10 लाख के आराम से, ठीक है? हिमाटिकस वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, जॉब के लिए बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत इंट्रोड्यूस कराएंगे। बट यही है कि यहाँ पे जो जॉब की अपॉर्चुनिटी आएंगी, वो शायद मतलब सैलरी वाइज शायद लिमिटेड होगा, कोई 5-6 लाख 7 लाख। बट अगर आप बाहर एक्सपोज करो, तो आराम से 8 बिना किसी डर के। बट है, बाहर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइट? बाहर आपको 5-7 इंटरव्यू देने पड़ेंगे, तब आपका एक सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आपके पास 2-3 इंटरव्यू दोगे तो आप, राइट? बाहर जाने का अपना ही रुतबा है। मैंने खुद नौकरी ली, ठीक है, मेडिकल से लाई, एक होता अपनी खुद की नौकरी। मैं तो हमेशा यही करता हूँ, मैंने MBA किया था तब भी यही था। सब लोग 20-25 हजार की नौकरी बहुत खुश थे, मतलब 3 लाख 3.5 लाख का, 3 लाख से ऊपर पैकेज मोस्टली किसी का नहीं मिला। तो जिसको बोला बड़ा खुश था, हाँ 3 लाख का पैकेज मिला,
20-22 हजार रुपये सैलरी आएगी, ठीक है। मैंने नहीं किया, मैंने बाहर ट्राई किया, राइट। और मेरा पैकेज 1-2 बच्चे से कम था जो बहुत अच्छे पढ़ने में थे, बहुत एक्सीलेंट थे, बाकी सबके मेरा अच्छा पैकेज था। और मैंने अपनी नौकरी खुद ढूंढी थी। मैं हमेशा अपना विश्वास करता हूँ, अपनी खुद की ट्राई करो, खुद समझ में मार्केट में क्या चल रहा है। आपको अच्छी नॉलेज, अच्छा पैसा, बेचते पैसा अच्छा बाहर, क्योंकि आप 100 लोगों को कम्पीट करके जा रहे हो, और यहाँ पर आप कितने लोग कम्पीट करोगे? 10-15 लोगों को। अपने बैच में कितने 10-15 लोग हैं, तो कहेंगे यार 10-15 में ठीक है, 100 में हाँ भाई 100 को हरा के बेचो। ये फायदा होता है बाहर के लिए। ये भी कराएंगे, ये भी सपोर्ट करते हैं बहुत सारे बच्चे, ये जो हाईलाइट लिखा है नहीं करवाए, राइट। बट अगर बाहर से करोगे तो पैसा अच्छा है, बहुत अच्छा, और आपकी चॉइस की नौकरी मिलेगी। और यहाँ जो मिल गई एक बार मिल गई, फिर दूसरा ऑफर शायद मिलेगा नहीं, राइट। दैट्स व्हाट आई फील, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, that's what I'm saying. ठीक है। और पैसा बहुत है, पैसे के मामले में बिल्कुल कोई चीज डरने की नहीं है, सबको सच बता रहा हूँ। पहली नौकरी जो मिले ले लो, राइट, मतलब 5-6 लाख रुपए जो मिले ले लो, राइट। और दूसरी नौकरी आपको आराम से 60-70% है। हाँ, मुझे मिली है, अभी मिली है यार, मैं 6 साल बाद चेंज कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरी जो बैंक से मैंने उसमें 68% सैलरी हाइक थी, सेल्स से डेटा साइंस में 68% है। हाँ, देखो वही मैं बोल रहा हूँ, जब मुझे डेटा साइंस के बारे में बहुत कुछ नहीं आता था, मुझे उस पर केवल सैस आता था, और थोड़ा बहुत आपको जो इतना पढ़ाया जाएगा ना, अगर इतना आ गया तो भाई, अगर सच में इतना आ गया तो आपको 20 लाख से कम कोई पैकेज नहीं देगा, अगर जितना पढ़ाया जाता उतना आता है तो, ठीक है। बट इतना आप सीख नहीं पाओ, इतना यहाँ कराया जाएगा उतना कैप्स आप दिमाग में कुछ नहीं पाओ, आधी चीजें रह जाएंगी। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, मतलब अगर इतना सीखे तो परफेक्ट डेटा साइंटिस्ट, किसी कंपनी के लिए परफेक्ट डेटा साइंटिस्ट। बट वो ये इतना आप सीख नहीं पाओ, कुछ ये छूट जाएंगे आपके दिमाग, कभी छुट्टी मार लोगे तो वो छूट गया, राइट, बहुत सारे गड़बड़ होंगे, वो आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, मैंने जब पहली जॉब स्विच मारी थी सेल्स से डेटा साइंटिस्ट, तो 68% क्या है, ठीक। अब आप कहोगे फील्ड चेंज किया, फील्ड चेंज करने में सैलरी कम मिलती है, समझ गए, देखना मार्केट में। और अब मैं चेंज कर रहा हूँ तो मेरी 60% हाइक है। चेंज नहीं, चेंज तो मैं कर लेता हूँ, 2-3 साल में चेंज कर लेता हूँ, राइट। अब मेरे पास 3 ऑफर 4 ऑफर पड़े हुए, 3 पड़े हुए, चौथा आ जाएगा शायद। तो पहला जो मुझे ऑफर मिला था वो था 40% हाइक का, दूसरा जो ऑफर मिला है वो मुझे मिला है 60% का, तीसरा मिला था वो भी 60% का, तो वो एक ही टाइम पे थे, नहीं तो मैं कह देता 60% का तो है, आप आगे बढ़ा के दो, वो एक ही टाइम पे डिस्कस हो रहा था, बोल नहीं सकते थे। वो हो गया। अभी जो मिल रहा है, अगला वाला जो डिस्कस हो रही है, वो 80% मिल रहा है। मैं और थोड़ा रुक जाऊं तो 100% भी कोई दे देगा, समझ रहे हो ना। पैसा बहुत है, बट आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए, आपको पैसे मांगने आने चाहिए, सिंपल बात है। आप कह सकते हो कि नहीं सर हम इतने पे आएंगे, इससे कम पे नहीं आ सकते, आई एम सॉरी सर, नहीं हो पाएगा, मना कर दो। अगर आपके पास नंबर है कि भैया मुझे 7 लाख से नीचे नहीं जाना है, तो मना कर दो, नहीं सर नहीं होगा। और आपको लगता है कि हम थोड़ा कर सकते हैं, 6 लाख को कर लो, और अगले 6 महीने में स्विच हो। 30-35% हाइक कहीं नहीं बची यार, 30-35% बढ़ गई तो 6 का 6-18, 80-8 लाख के आसपास हो गई। अंडरस्टैंड। तो पैसे बढ़ाने और आपको बढ़ाना बहुत आसान है आज की डेट में, बट वही है कि आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर जितना यहाँ पढ़ाया जाता है, अगर इतना आपको आता है सच में, इन सबके क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हो 80% भी, तो आप 15-20 लाख का पैकेज, अगर इतना आता है। जब इंटरव्यू लिया जाएगा ना, ट्रेनर लेके आपको पता जाएगा हमें कितना आता है, फिर अपने आप कैलकुलेशन करना मुझे कितना पैकेज। यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं जैसे, हाँ तो वेट करो, आप सीखो बाहर। आईआईटी में क्या होता है, आपको क्या लगता है, आईआईटी में सबका पैकेज 50 लाख का लगता है? आज दिल्ली का बता दूं मैं, 6 लाख का पैकेज है पिछले साल का मिनिमम।
मैक्सिमम 1 करोड़ का है, समझ गए? पैकेज तो वेरी करते हैं। देखो आईआईटी में सारे प्रोफेसर एक जैसे पढ़ाते होंगे, जो भी बच्चे पढ़े हैं सब प्रोफेसर सेम पढ़ाते होंगे, राइट? किसी को नौकरी बहुत अच्छी मिल रही, किसी को बहुत कम, इस पर डिपेंड करती है बच्चे। बिल्कुल, इसमें तो कुछ चीजें मुझे भी नहीं आती, नया पढ़ाया जाता है, कुछ चीजें मुझे भी नहीं आती। मुझे आती नहीं कि मतलब पढ़ा नहीं सकता, मैं काम कर चुका हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा दो सर, मैं मना कर सर नहीं पढ़ा नहीं पाऊँ। 7 साल पहले इतना कंपटीशन नहीं था, 7 साल पहले इतना कहाँ था? आपने नाम सुना था 7 साल पहले? 7 साल पहले डेटा साइंस का नाम ही लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता था, बाकी किसी को। मैं मूवी देखता था, मूवीज को तो समझ में आया कि हाँ ये भी कुछ चीज होती है। साई फाई मूवी देखो, सब में आपको समझ में आ जाएगा इसमें मशीन लर्निंग काम कर रही है, एआई काम कर रही है। कौन सी मूवी में ऐसा नहीं है साई फाई मूवी जिसमें एआई काम नहीं करती, बताओ? आयरन मैन देख लो, मिशन इम्पॉसिबल देख लो, आप मैट्रिक्स देख लो। तो वही तो बात है, ये आपकी चॉइस है, आप सामने देखे क्या चीज खाते हो। एक बंदा रास्ते में गिर गया, है ना, और वहां पे 10 लोग खड़े हैं, सब अलग अलग सोचे दारू पी के लड़क गया होगा, क्योंकि वो दारू पीता है, इसलिए उसके दिमाग में वही है। तो अरे यार, और कुछ गवर्नमेंट से दुखी, सड़क पे पत्थर बना रखे हैं, गड्ढे बना रखे हैं, गिर गया बेचारा, राइट? ये कोई बीमार उमार होगा पहले से, यार बीमार उमार होगा इसलिए गिर गया। तो जैसी अपनी सोच रखोगे वैसे ही सोचोगे आगे। हरिश्चंद्र का नाटक सब देखते थे, हरिश्चंद्र देखा, सुना है ना हरिश्चंद्र पहले? कोई बात नहीं, महात्मा गांधी ने क्या सीख लिया? सत्य बोलना, है ना? सबने नाटक देखा, उसने सत्य बोलना सीख लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब लोग क्या सीखते हैं? अरे बड़े चोर होते हैं, पैसे चुरा लेते हैं, करते हैं। मैंने सीखा कि वो काम कैसे करते हैं, उससे मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। मूवी में जैसे होता है ना, लोग चेहरे बदल देते हैं, चेहरे तो सेट, जैसे कि आपका शाहरुख खान या कोई भी है, उनको रियल लाइफ देख लो, मतलब क्या बोलूं मैं। जैसे आप भी करते हो अगर आप किसी डॉक्टर से मिलते हो, राइट, कि अरे सर दवाई से काम नहीं हो रहा, ये दिक्कत है, वो मैसेज करता होगा, अरे नहीं ऐसे ऐसे कर लो, इसमें डोज बढ़ा दो घटा दो, ऐसे करते हैं लोग। यहाँ शायद नहीं करते, बट यूएसए में करते हैं लोग, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया जो भी है उनका। हमने कहा क्या करें, मैंने एक फिल्म देखी थी, सिविल वॉर, अवेंजर्स की। सिविल वॉर कौन सी मूवी, नाम नहीं याद, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। उसमें आपने जोला एल्गोरिथम्स पता है क्या थी? नाम ही नहीं पता होगा, जाके देखना आज रात को। जोला एक वो था, जर्मन साइंटिस्ट था, उसने एल्गोरिथम बनाई थी। वो एल्गोरिथम क्या करती थी कि जितने भी लोग हाइड्रा के लिए थ्रेड है, हाइड्रा एक उसमें विलन होता है, राइट? हाइड्रा वो काम करता था, हाइड्रा के लिए जितने भी थ्रेड है उन सबको पता कर लो, पूरे विश्व से। कैसे पता किया? उसने लोगों बैंक अकाउंट, लोगों के ईमेल चैट, व्हाट्सएप, मतलब उस वक्त जो भी उन्होंने नाम लिए, ईमेल चैट, बैंक ट्रांजेक्शन, सोशल मीडिया, फोन कॉल्स, मैसेज, सब रिकॉर्ड करे, फ्लाइट, सब रिकॉर्ड किए, राइट? और सब रिकॉर्ड करके उनके पास डेटा है। और उन्होंने देखा कि जो जिन्होंने उनको खत्म किया, किन्होंने किया था? एवेंजर्स ने, या जो के कौन से थे, कैप्टन अमेरिका और वो विडो और वो सब थे, उनका बिहेवियर स्टडी करा कि इस बिहेवियर के जैसे भी लोग हैं, जेनेटिकली या सोशलिकली, उन सबको मार देंगे। उन्होंने स्टडी किया और उस एल्गोरिथम को ट्रेन किया और देख लिया कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनको सबको खत्म कर देंगे। तो कभी भी झोला को मारने वाला कोई नहीं होगा, सीधी खत्म हो जाएगा। उन्हें एल्गोरिथम बनाई और पूरी जो फ्लाइट लास्ट मोड़ जाती है, हवा में बंदूक मारने की कोशिश करते हैं, तो ये तो करती है एल्गोरिथम। वही तो चीज है, ये सब चीजें, ये जो एलन मस्क वगैरह ये सब कुछ कर रहे हैं, वो फिल्म है, वो फिल्म है, बट वो आपको एक आइडिया देते हैं।
आप उससे देखो आइडिया कि यार ऐसे एक राइटर ने सोच रखा, ऐसा हो सकता है, आप नहीं बना सकते, बनाओ अपना, अंडरस्टैंड, आप बनाओ ऐसा, और उस एल्गोरिथम को उठा के फिर आप चिपका दो। जैसे फनी पार्ट बताता हूँ मैं, मैंने पहले करा था, वो मेरे एक दोस्त है, हम सब लोग बड़े पढ़े लिखे हैं ना, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर सकते हैं, तो हाँ क्या दिक्कत है। तो उसकी ना चॉइस बहुत गंदी है कपड़ों के मामले में, लड़के की, बेचारा गिफ्ट लेके गया तो क्या क्या तुम उठा ला करती, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कहा उसने, बट पीछे से उसे लग गया कि मुझे पसंद नहीं आया। वो एक दिन बैठा था, यार तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो, कुछ करो। मैंने, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए बताओ। बोले ऐसी सी बात है, ऐसे। हमने चलो ठीक है, मैंने एक छोटा सा ऐप बनाया उसके लिए, वो कर, मैंने कहा जाओ जितने भी उसके घर में उसके कपड़े हैं सबकी फोटो ले लो, जो मतलब टॉप वगैरह जो पहनती है, जींस या जो भी, बोले क्या करेगा, हम टोटका करूंगा, लेके आ जा भाई। ले आया, फिर वो जाता था मार्केट में, राइट, मैंने डेटा कलेक्ट करवाया, मैंने मार्केट घुमा, उसको बोला ये तुम्हें पसंद है ये वाला सूट, ले ले, नहीं यार अच्छी, फोटो खींच ले, राइट, ये हाँ ये अच्छा लग रहा है, लेना नहीं बाद में ले लेंगे, ऐसे उसने फोटो डेटा कलेक्ट करवाया और एल्गोरिथम बनाई। अब वो क्या करता है कि जब उसे पता चल गया एल्गोरिथम किस तरह के कपड़े इस लड़की को पसंद है, जब भी वो जाता है मार्केट में फोटो खींचता है, और उसे पता जाता है कि भैया ये उसको पसंद आएगा, कितने परसेंट पसंद आएगा, 80%, 90%, 70%, और उसको फिर वो सेलेक्ट करके डेटा छोटा था तो बहुत अच्छा एल्गोरिथम काम नहीं करती, सिंपल सा, मुश्किल से, मतलब अगर वो 10 भेजता है तो 7-8 उसको पसंद आ जाते हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। पहले तो वो 10 भेजता तब 2 समझ में आते थे उसके, अब कम से कम 80% उसको समझ में आते थे प्रोजेक्ट। ये ये मैंने ये भी मैंने कई फिल्म से देखा था बहुत पहले, वो तो पढ़ने की बात जब डीप लर्निंग, बेटा मैं मेरा फोर्टे जो है वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग, बाकी पाइथन अगर होगा तो पाइथन पढ़ा सकता, फोर्टे ज्यादातर मेरा तो मशीन लर्निंग, इस तरह की चीजें बना सकते हो आप। ये मैंने बनाई है, ये मैं ये नहीं बोला कि मैंने कहीं सुनी है, ये मैंने खुद की बना रखी है, राइट। जब हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो शायद मैं उसका थोड़ा बहुत डेमो दिखा सकता हूँ, इस तरह की चीजें बना सकते हैं, ये सब डेटा साइंस है, अंडरस्टैंड। एलेक्सा आज आपसे बात कर रही है, राइट, ये चीज डेटा साइंस है। सीरी आपसे बात करती है, डेटा साइंस, राइट। आपका फेस रिकॉग्निशन करके वो बनाता है, आपकी मोबाइल खुलता है, लैपटॉप खुलता है, डेटा साइंस उसके पीछे, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब मैं आपको सिर्फ ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा साइंस है क्या। डेटा साइंस वो सब कुछ है जहां पे डेटा, वहां पे आप डेटा साइंस लगा सकते, ठीक है ना। अभी चलो बहुत सारी बातें बाद में बता दूंगा, बट पॉइंट ये है कि डेटा साइंस आज हर दूसरा बंदा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करना चाहता है, पता है आपको। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ एमबीए पढ़ते थे, जब मैं उनसे कहता ना स्टैटिस्टिक्स सीख लूं, एमबीए में स्टैटिस्टिक्स होती थी, मैं तो मैथमेटिक्स ऑलरेडी करता था, तो सीख लिया भाई, कहते कहीं जरूरत नहीं पड़ती, कहीं जरूरत नहीं पड़ती इसकी जॉब में, नहीं ठीक है मत पढ़ो, मुझे लग इंटरेस्ट था मैं पढ़ता रहा, राइट, और वो सब चीजें यूज होती है। आपने सबने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़ा है, इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, वो सब यूज होता है, और इससे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, सब कुछ यूज होता है, बट वही है कि हमें जो पढ़ाया गया उनको खुद नहीं पता था कि इसका यूज क्या क्या है। जब एमएससी कर रहा था मैथमेटिक्स, टोपोलॉजी, थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और रियल एनालिसिस, बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई, पता नहीं था यूज कहाँ करना है। इक्वेशन में प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, बात एग्जाम हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर से दोबारा मुझे पढ़ना पड़ा, और आप प्लस करिए, मैं अभी भी 11th 12th की मैथ्स पढ़ता हूं, इतना कुछ छुपा हुआ है 11th 12th। अगर आपको आता है 10th 11th 12th की मैथ्स, आप बहुत रॉक कर सकते हो, आगे छोड़ दो, बाकी बड़ी दुनिया बहुत दूर की बात है, सिर्फ वो आता है बहुत बड़ा काम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना, बहुत बड़ा काम।
आपको ज्योमेट्री आती, बहुत अच्छा काम करते हो। आपसे कोई पूछेगा नहीं इंटरव्यू में ऐसे जनरली क्वेश्चन, क्योंकि उसे खुद नहीं आता होगा, बट हाँ अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा काम कर सकते। तो यही है डेटा साइंस, ठीक है। बट वही है, जो चीज आपने पढ़ी है उसको रिविजिट करके नए तरीके से समझना। डिफरेंशिएशन हो, कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, अरिथमेटिक हो, ठीक है। आप एक बच्चा था इसी ऐसी बैच से, उसने क्या किया, मेंसुरेशन जो आपने पढ़ी होगी ना 6, 7, 8 में, उसके लिए एक फंक्शन बना रखता है। जितने भी सॉलिड फिगर्स हैं सबका वो एरिया वॉल्यूम निकालता है, फंक्शन उसमें वैल्यू डालिए बस। डिस्टेंस के सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कितनी है, हाइट कितनी है, बता दो, वो एरिया वॉल्यूम सब बता देंगे सेकंड से बना रखा है, समझे। ये आपकी चॉइस है कैसे पढ़ो, क्लास में सब पढ़ेंगे। वो ये कुछ लोग अच्छा पैकेज पाएंगे, कुछ लोग ऐसे तो, और कुछ लोग डर के मारे छोड़ भी देंगे, ना हो रहा मुझसे, ठीक है। इसीलिए आपको सबसे पहले ऐसे टीचर्स पढ़ाया जाता है तो बहुत बेसिक चीजें, बेसिक का मतलब बहुत सिंपल चीजें पढ़ा। मेरे से पढ़ोगे तो बाद में रोने भी लगोगे, ना हो रहा मुझसे। मतलब ये कि मैं रियल वर्ल्ड की बातें करता हूँ, किताबी बातें। होना ये है कि रियल वर्ल्ड जल्दी समझ में नहीं आता ना। हमारे माँ बाप ने, हमारे भाई ने, हमारे दोस्त ने, हमारे टीचर ने सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान दिया, होंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस भाई 2 साल का। हाँ हाँ, आपका पढ़ता है, आपको पढ़ना चाहिए राइट, बट वही है कुछ लोग रो जाते हैं ना, वो इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें कभी सुनी नहीं, किताबी ज्ञान सुना होता है उसे खुश है। और मैं पूरी एल्गोरिथम जब तक पढ़ाऊंगा मैं कोई किताब नहीं, कोई किताब। आपको चाहिए मैं किताबें 10 दे दूंगा, बट मैं किताबें नहीं, मैं किताबें उठाऊंगा तो फोकस हो जाता है यही पढ़ा, इसलिए कोई किताब नहीं। मोस्टली जो शायद आलोक सर भी यही करते हैं, इवन पीपीटी भी नहीं खोलूंगा मैं, यहाँ पे जो पीपीटीज बनी हुई है वो भी नहीं, पीपीटीज आपके पढ़ने के लिए आप पढ़ते हैं, बट हाँ जो पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बना कर बहुत, राइट। मैं एक्सेल में लिखता रहता हूँ कुछ चीजें, राइट, बट एक्सेल को शेयर भी कर देता हूँ कि ये चीज यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अगर आप और पढ़ोगे तो नोट्स बनाओगे ज्यादा अच्छा, और जो नोट्स बनाओगे उसमें से आपके मुझे लगता है कि रियल वर्ल्ड में 60-65% इंटरव्यू क्वेश्चन, कुछ बिजनेस स्पेसिफिक होते हैं वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मान लो आप चले गए बैंकिंग चले गए, राइट, मुझे क्या पता वो क्या कर रहा है, वैसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो नहीं पता, तो आपकी इंटेलिजेंस काम आएगा। बाकी जो डेटा साइंस रिलेटेड है इस तरह से सब 60-65% के आसपास, 70% क्वेश्चन यही से। बट अगर आपको याद है तब आपकी मेमोरी अच्छी है, एग्जाम टेस्ट इंटरव्यू आपका नहीं होता, आपके ब्रेन का होता है। आप कितना याद कर पाते हो, आप कितना रिटेन कर पाते हो, आप कितना रिट्रीव कर पाते हो, पढ़ा तो सबने बराबर, राइट। एग्जाम आपका टेस्ट का है ना, आपका ब्रेन जितना अच्छा उतनी ही अच्छी नौकरी, उतनी अच्छा पैसा। एक रॉ एजेंट का आपको पता दिमाग कितना तेज होता है, ऐसे जाएगा सब उसको याद है क्या क्या हुआ, आप कौन सी शर्ट पहने थे, शर्ट में कौन सा पेन लगा हुआ था, सब याद है। और रॉ एजेंट को तभी उसको ना, आपने देखा टेस्ट लेके जाते बहुत छोटे छोटे डॉट बना के। और जो इसका होता है एनडीए का एग्जाम दिया किसी, हम लोग, मैं गया था, मेरा अलग कहानी है क्या कैसे नहीं, बट एनडीए के एग्जाम आप ना लेटर्स लिखवा, पॉपअप होते हैं लेटर्स, ठीक है, शायद कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, वो आपको याद करने और आपको लिखने सीक्वेंस, कुछ भी हो सकता है, 2 लेटर का हो सकता है, 10 लेटर का हो सकता है, नहीं ऐसी कोई नहीं है, नहीं ऐसा कुछ। इवन ये पूछा जाता है जैसे वो इंटरव्यू लेते हैं ना, एक बंदा बड़ा शातिर होता है बैठा रहता है, ऐसा सबसे नहीं पूछता, रैंडम पूछते हैं, अच्छा ये बताओ आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए इस इंटरव्यू, 5 लोग होते हैं, अब आपको पहले याद होनी चाहिए, ठीक है, किस ऑर्डर में पूछे गए होता,
ऑफिसर का गेम, जॉब ऑफिसर का जो इंटरव्यू होता है वो माइंड गेम होता है, ठीक है ना। और आर्मी के जो इंसान का होता है वो फिजिकल का होता है। कभी तुम्हें गोली चलानी है ना, शूट शूट, उन्हें नहीं सोचना आगे कौन है, मार दो मतलब मार दो। इसीलिए वो पढ़े लिखे नहीं मांगते हैं। जो आर्मी में सोल्जर होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते ज्यादा, ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा, ग्रेजुएशन या 12th पास होते, 10th 12th पास। और ऑफिसर्स को सोचना होता है, इसीलिए जो IIT IIMs बंदे आते हैं डायरेक्ट उन्हें मैनेजर की पोस्ट मिलती है, राइट। हमें क्या मिलता है, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, देन असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, तब जाके मैनेजर बनते हैं 7-8 साल। ये डिफरेंस है ब्रेन का और आपके एक्शन। चलो गाइस, आई थिंक वी आर डन, राइट। मेरा आपसे डिस्कस करने का मतलब ये था कि डेटा साइंस इज लाइक लीडिंग टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे, और अभी ना सिर्फ शुरुआत हो। आप गूगल से पढ़ो, ये सब करो ना, लोग कहते हैं कि और ये डेटा साइंस एग्जॉस्ट होने वाला, कोई नहीं, ये सब बकवास बनाते हैं। इन्हें ना सिर्फ अपने वो चाहिए होते हैं, व्यूअर चाहिए होते हैं, ऊट पटांग कोई बात लिख देंगे। हाँ, हर जगह आप जो आप पोस्ट पढ़ते हैं उसके पैसे मिलते हैं उनको भाई। जो आप ब्लॉग बनाते हैं लोग, राइट, आप पढ़ने बैठ जाते हैं उनके पैसे मिलते हैं। हाँ, नहीं सच बता रहा हूँ बेटा, इनको पैसे मिलते हैं, राइट। और यूएसए वाले बड़ा गंदा खेल खेलते हैं, राइट। उन्हें क्या होता है कि जो चीज उन्हें लगती है कि इसके लिए मुझे लोग ज्यादा चाहिए, राइट, काम कराने के लिए, वो क्या करते हैं, उसकी हाइप बना देते हैं। पहले उन्हें क्या चाहिए, इंजीनियर चाहिए थे, भाई इंजीनियर तो भगवान है, ये है वो है। पूरे इंडिया में कुकुर मुत्तू तरह इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, राइट। ग्रेटर नोएडा में चले जाओ, 150 कॉलेज के आसपास होगा, 100-150 कॉलेज होंगे। हर भर के लोगों ने बीटेक किया, हर भर लोग इंजीनियरिंग करी। आजकल आपको हर गली मिल जाएगी इंजीनियर। फिर बोले अब इंजीनियर बहुत हो गए, अब मैनेजमेंट वाले बनने चाहिए, MBA इज द बेस्ट ऑप्शन। MBA अगर दुनिया फेल, डायरेक्ट मैनेजर। MBA के कुकुर मुत्ते स्कूल खोल दिए, कॉलेज, सब लोग एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले लिया, राइट। मैं भी उसी फंस गया था, MBA कर लिया। अब क्या चल रहा है, डेटा साइंस, डेटा साइंस अगले 10 साल। और ये एक्चुअल नीड है, क्योंकि पूरी दुनिया आगे देखना कुछ 10 साल में बहुत बदलने वाली है। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है 10 साल बाद कोई रोबोट पढ़े, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप पढ़ गए तो आप खुद को रोबोट बना सकते हो, अगर आप नहीं पढ़े तो आपको रिप्लेस कर। लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं जाने वाली, ट्रस्ट करो, नौकरी सिर्फ वो नहीं जाएगी जिसमें दिमाग लगता है, वो सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी जिसमें लोग मैनुअल, मतलब कहते हैं ऑटोमेटिक वाला, हर दिन कापी उठा के ऐसे प्रेस करना है, लोग काम करते हैं ना, उसके लिए मशीन बन जाएगी, खत्म। चाय पहले बनाते थे, राइट, अब चाय के लिए मशीन आ गई, धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है ना सब कुछ। मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको, मैंने प्रैक्टिकल लैब में कितने लोग नौकरियां खाई है, मैंने खुद खाई है। ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाए हैं, मजबूरी थी, मैं नहीं बनाता तो मेरी कोई नौकरी खा जाता भाई। वही तो बैठा है ना आपकी नौकरी खाने के लिए, मैंने बना दिया भाई। वो ये दिमाग अगर काम कर रहा है तो नहीं, तो कोई नहीं चीज। इसीलिए मैं बोला प्रोग्रामिंग इज नॉट टफ। प्रोग्रामिंग आजकल पता है, आजकल एक बंदे ने बनाई, उससे वो बोलता है उससे सिस्टम से, अच्छा एक प्राइम नंबर निकालने का प्रोग्राम लिख दो, वो लिख देता, प्रोग्राम लिख देता है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिख देता है खुद। तो प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी थोड़े बहुत दिन बाद, मुश्किल से 4-5 साल 10 साल बाद प्रोग्रामिंग खत्म, रह जाएगा सिर्फ लॉजिक। लॉजिक बना दो, प्रोग्राम खुद सेट। और अब कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रोग्रामिंग फ्री, लैंग्वेज फ्री प्रोग्राम। आप लॉजिक लिखो, वो किसी प्रोग्राम में सेट हो जाए, पाइथन में, जावा में, सीक्वल में, जिसमें वो अपने आप सेट हो जाए, आपको लिखने कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बता वो लिख दो, स्टेप्स लिख दो क्या हो, वो अपने आप अडॉप्ट कर ले। लैंग्वेज आज की डेट में है, लोग मांगते हैं कि भाई आपको पाइथन एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, बट आफ्टर फ्यू, अब जैसे कि वेबसाइट बनाते थे लोग, राइट। यही है ना कि धीरे धीरे चीजें सब ऑटोमेटिक, सिर्फ वो चीज ऑटोमेटिक जिसमें दिमाग लगे। जैसे सेल्स की जॉब है, अभी ऑटोमेटिक नहीं, क्योंकि सेल्स में इंसान को बेवकूफ बना, और रोबोट बेवकूफ नहीं बना सकता।
हो सकता है आगे 10, 20, 50 साल बाद बना ले, अभी नहीं हो। क्या बात है? अभी जो एरा जो चल रहा है, इस वक्त जो एरा चल रहा है शैलो एआई का चल रहा है। 3 स्टेज है। शैलो एआई, राइट, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसका बेबी स्टेप पे चल रहा है। उसको शैलो एआई को कंप्लीट करने में कम से कम 10 से 15 साल है, सिर्फ शैलो एआई को उस पे लाने पे, हाई स्टेज पे। मतलब हाँ, एआई बहुत अच्छा हो गया, उसको करीब 10 से 15 साल है। तो आप सोचो कितनी चीजें ऑटोमेटिक। फिर आएगा जनरल एआई। जनरल एआई की इतनी ताकत होगी, वो इंसान के बराबर काम कर सकती है। ओके, और उसके बाद आएगी सुपर एआई। अभी शैलो एआई चल रही है, तो अमेरिका के जो वो हुआ था F-14 या F-16 जो फाइटर जेट वाले लोग हैं, उनको एक एआई ने मार दिया। 4 फाइटर्स, सबसे बेहतरीन फाइटर। मार का मतलब एक्चुअली मार दिया, सिमुलेशन में एआई ने। क्योंकि अभी शैलो एआई पे काम कर रहे हैं हम सब, समझ गया? जब हम जनरल एआई पे आएंगे, फिर उस पे आएंगे सुपर एआई। जनरल एआई के इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जैसे कि सुंदर पिचाई है, नेल्सन मंडेला है, ये सब लोग मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एआई बहुत एडवांस है, इस पे गवर्नेंस होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए कि बंदा कौन क्या कर रहा है, ये चेक होना चाहिए। नहीं तो एक ऐसा बना के चला जाएगा ना कि खत्म कर दीजिए। गूगल और ये फेसबुक सभी यही कह रहे हैं कि जनरल एआई पे भी लोग मना कर रहे हैं कि मत करो। कोई मानेगा नहीं ना, करेगा, उसको पैसा चाहिए। जनरल एआई पे भी काम कर, शायद कुछ कंपनियां शुरू भी कर चुकी हैं। इतनी हिडन बात नहीं आएंगी ना सामने, जब होगा तो आएगा। अभी सेलो एआई पे काम कर रहे हो तो इतनी कहानी है। जनरल एआई बनेगी तो क्या होगा, डीप लर्निंग, क्या सुपर एआई बनेगा तो क्या। तो अपने मैट्रिक्स वो भी देखिए ना जी। डेटा साइंस ये आपको लाइफ में चीज। एक एआई से पूछा गया था कि क्या आप इंसानों को नुकसान पहुंचाओगे, तो उसने बोला था कि जब तक आप मुझे नहीं पहुंचा तो उस मशीन खत्म कर। दो मशीनों को आपस में बात करने के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है? आप गूगल कर लेना, वो ऐसी लैंग्वेज जनरेट कर दी थी उन्होंने आपस में बात करते करते कि इंसान समझ ही नहीं सकता कि वो क्या बात है, कोड ही नहीं कर पाया उन दोनों मशीन। ये तो अभी रिसेंट की बात है, अभी तो हम डीप उस पे जनरल एआई पे नहीं पहुंचे। जो राइटर सोचते हैं ना, वो कहीं में कुछ नहीं। फेसबुक का जो जुकरबर्ग है, उसके घर पे जार्विस जैसा रोबोट है, जो पूरी आर्मी तो नहीं चलाता, बट उसकी सारी चीजें याद रखता है, सारी चीजें याद रखता है, ठीक है? शर्ट प्रेस कर दो, ऑर्डर कर देते हैं कि हाँ शर्ट प्रेस कर दो, सबका जाने का, सर इतनी मीटिंग है आज, सर ये सब कुछ है, समझे? वो देखिए स्टार ट्रैक, स्टार वॉर, नहीं, स्टार वॉर में देखो वो ड्राइड्स होते, देखा नहीं? ड्राइड्स होते हैं, वैसे घूमते रहते हैं, जिसके ड्राइड होता है उसका पीछा करता है, उसके साथ मतलब एक तरह के एआई से मतलब रोबोट से, उसके साथ घूमते रहते हैं, ठीक है? ऐसा ही एक ड्राइड बनाया है इसने अमेजोन के बॉस का, जहां वो जाता है उसके साथ घूमता है। और स्टार ट्रैक पता कब, स्टार वॉर कब आई थी? 1960s में। उस वक्त तो एआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो जानता नहीं था कि एआई कोई चीज है, ठीक है? उन्होंने बना, वो ऐसे काम करते थे। तो वेलकम टू द हेल ऑफ एआई, बहुत सारी चीजें, ठीक है? चलो गाइस, आई थिंक आई एम डन, और मेरा अगला बैच भी है, सो विल सी यू टुमारो, अगले क्लास, अगले वीक से। चलो मिलते हैं बेटा, बाय हिमानी एंड गुरबित, गर्वित, सॉरी, Bye, sir. टेक केयर। You You too. too, sir.